وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن ممبئی اور بھیونڈی کے اشتراک سے آج کا یہ واقعی میں ایک تاریخی سیمینار، جس میں نیو ایجوکیشن پالیسی کو لے کر اور نیو ایجوکیشن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سامعین کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا جو وقت کی ضرورت ہے۔ نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ ہم تمام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میں اس کامیاب ویبینار کے منعقد کرنے پر پروفیسر ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب، شیخ خالد بن فاتح صاحب، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی والدہ کو جنت نصیب فرمائے، مومن فیاض احمد صاحب، شیخ وسیم صاحب، مومن کاشف صاحب اور مومن فہیم صاحب، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیگر آئٹا کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نہایت اہم موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس ویبینار کا انعقاد کیا۔ عزیز ساتھیوں، اساتذہ، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مختلف مواقعوں پر مختلف رسائل سے، مختلف خبروں کے ذریعے ہم نے صرف نیو ایجوکیشن پالیسی کو سنا ہے، جس کی بنیاد پر اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنا گیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس چیز کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس چیز کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے، کیا آپ نے نیو ایجوکیشن پالیسی کے اس ڈرافٹ کو پڑھا ہے جو منظور ہوا ہے؟ تو بڑا غم ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس ڈرافٹ کو اب تک بھی نہیں پڑھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ڈرافٹ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ سابقہ دور میں یا پرانے دور کو یاد کریں تو ہمارے سامنے مختلف پالیسیز کا منظرنامہ سامنے ہے، جس میں 1986 کی پالیسی ہے، جس کو پڑھ کر ہم سب لوگ آج یہاں پر جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے کوٹھاری کمیشن کو پڑھا ہے، ساتھ ہی دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے RT ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ اسی طرح سے نئی قومی تعلیمی پالیسی کو پڑھنا آج کے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ مستقبل کے تمام تر اس تعلیمی نظام کا دار و مدار اس قومی تعلیمی پالیسی پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر ایک پہلو پہ بات کی جائے تو یہ رات کم پڑے اور دن بھی کم پڑے، بلکہ نہ صرف اس پہلو بلکہ اس پہلو کے ایک نقطے پر اگر بات کی جائے تو دن اور رات کم پڑے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر پہلو کو بغور پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر لکھی ہوئی بات کا مطلب الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقوں سے لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قومی تعلیمی پالیسی کو کبھی بھی ریجڈ نہیں بنایا جاتا، لچکدار بنایا جاتا ہے۔ لچکدار اسی لیے ہوتا ہے کہ جب جب بھی وقت کے حساب سے ضرورت ہوتی ہے، جب جب بھی وقت کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ تبدیلی ضروری ہے، تو اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ لہذا حکومت نے اس بات کی فکر کو محسوس کیا، اس بات کی فکر کی، اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے قومی تعلیمی پالیسی کو بنانے کی تیاریاں جاری تھی، جس میں کئی سارے افراد نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے۔ کئی سارے، مجھے یاد ہے اب بھی آئٹا کا وہ جوگیشوری کا ورکشاپ جس کے اندر حسن فاروقی صاحب صدارت فرما رہے تھے، اور مجھے اس وقت جو ہے
ICT का तालीम में इस्तेमाल इस मौजू पर बोलने के लिए मदऊ किया गया था और तकरीबन 200 सफ़ात पर मुश्तमिल वो डॉक्यूमेंट जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को पेश किया था। मुझे याद है वो अभी अच्छे तरीके से। तो पता ये चला कि 2014-15 से ये प्रोसेस शुरू थी। उसमें कई मौक़ों पर कई अलग अलग तरीकों से लोगों से उनके अपने ख्यालात मंगाए गए, उस पर अपनी राय मंगाई गई, उस पर जो है उनके ख्यालात रखने के लिए कहा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत कम ऐसी तंजीमें हैं, हम में से बहुत कम ऐसे अफराद हैं जिन्होंने एक अच्छी शक्ल में, एक ड्राफ्ट की शक्ल में हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचाई है। लिहाजा आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूं वो बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि स्कूली तालीम जो है वो हम सबसे मुंसलिक है। बगैर स्कूली तालीम के आगे की जितनी भी तालीम है, चाहे वो आला तालीम हो, चाहे फिर वो उसके बाद की तालीम हो, इन सब का दारो मदार इब्तिदाई तालीम यानी स्कूली तालीम पर मुनहसर है। मुझे लगता है कि एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए से हम उस बात को समझेंगे। मैंने बहुत कम वक्त में अपनी बात को समेटने की कोशिश की है, लिहाजा मैं उस प्रेजेंटेशन के जरिए से अपनी बात को आप तक रखना चाहूंगा। और मेरी एक ख्वाहिश ये भी रहेगी कि ना सिर्फ हम इस मौजू को यहाँ पर रोके, बल्कि हम इस तरह की सीरीज शुरू करें। जैसे मान लो आज मुझे आपने ये मौजू दिया, मोहतरम हमारे शाबान साहब को आपने एक मौजू दिया, इसी तरह से आइंदा हफ्तों में आप किसी दूसरे मौजू को लेकर किसी अलग एक्सपर्ट को जो है उनकी बात रखने के लिए कहे, फिर तीसरे हफ्ते कोई और मौजू को। इस तरह से होगा ये कि हमारे अपने मुआशरे में इसके ताल्लुक से जो लाइल्मी है वो लाइल्मी दूर होगी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक निगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन किसी भी चीज को अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे, किसी भी चीज को अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, तो मुझे यह लगता है कि निगेटिव होने वाली चीज भी इंशाल्लाह वो पॉजिटिव हो सकती है। जब तक यह ड्राफ्ट था तब तक बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा। अब इसकी जिम्मेदारी नाफिज करने वाली है। अब स्टेट NCF तैयार होने के बाद SCF तैयार होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद स्टेट अपना करिकुलम तैयार करेगा और उस हिसाब से जो है तालीम का जो अमल है वो जारी रहेगा। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां हैं। अब नई तालीमी पॉलिसी 2020 की नुमाया खुसूसियात स्कूली तालीम को लेकर क्या है, उससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किस विजन को सामने रखकर ये तालीमी पॉलिसी जो है तैयार की गई है। अगर जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा होगा, इस मसवदे को पढ़ा होगा, उसमें इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि हमारी ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है, इस कौमी तालीमी पॉलिसी में ऐसे हिंदुस्तान मरकूज निजाम तालीम का तस्वुर रखती है जो सबको आला मियारी तालीम फराहम करे। न सिर्फ आला मियारी तालीम, बल्कि हमारे मुल्क को पायदारी के साथ, इक्विटी के साथ और एक ऐसे समाज के रूप में एक इल्मी दोस्त फराहम करे जिसका ताल्लुक हमारे अपने समाज से है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि सब जितने अफराद हैं, हमारा पूरा मुल्क जो है, उसको सामने रखते हुए हर एक को एक ऐसी तालीम जो कि मियारी हो, ना सिर्फ मियारी हो बल्कि आला मियारी हो, और जिसमें इक्विटी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इक्विटी एक ऐसा लफ्ज है जो अपने आप में बहुत सारे मायने रखता है। इक्वालिटी एक अलग चीज है, इक्विटी एक अलग चीज है। बराबरी का हक दे देना ये इक्वालिटी है। इक्विटी तमाम के साथ, तमाम लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो किसी भी जात और फिरके का हो, चाहे किसी भी खित्ते का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी रंगो रूप का हो, चाहे वो किसी भी तनासुब का हो, इन तमाम लोगों को उसकी जरूरत के मुताबिक, जो उसे जरूरत है उसकी जरूरत के मुताबिक उसको पेश करना, ये इक्विटी कहलाती है। और इसी चीज को, इसी तस्वुर को सामने रखते हुए एक आला मियारी तालीम को देने का हदफ
इस कौमी तालीमी पॉलिसी को सामने रखते हुए तैयार किया गया है। अजीज साथियों, आपको मैं बताता चलूं कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो अभी मौजूदा तालीमी निजाम है उसमें 10+2 का ये जो है कंसेप्ट था, एक ढांचा था। लेकिन नई जो तालीमी पॉलिसी है उसके अंदर हमारा जो नया कंसेप्ट है उसमें 5+3+3+4 इस कंसेप्ट को सामने रखा गया है। अब वो जो कंसेप्ट है वो ना सिर्फ जैसे अब जो है 6 साल की उम्र में हमारे पास एडमिशन होते थे, लेकिन इस तालीमी पॉलिसी के हिसाब से 3 साल से 18 साल की उम्र तक के जो तलबा है वो तालीम हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से जो हमारी मौजूदा तालीमी जो ढांचा है उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास सिर्फ 6 साल की उम्र के ऊपर वाले जो है बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। हमने बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में जो बच्चे सीखते थे उनकी तालीम का जिम्मा जो है नहीं लिया था। लेकिन इस तालीमी पॉलिसी के अंदर खास तौर से आंगनवाड़ी, बालवाड़ी यानी 3 साल की उम्र के बच्चों, 3 साल की उम्र से लेकर जो है 18 साल की उम्र के तमाम तर तलबा और तालिबात का ख्याल रखा गया है। साथ ही एक हदफ इसके अंदर ये लिया गया है कि बैनुल अक़वामी मियार के बचपन की, मतलब बैनुल अक़वामी मियार का जो है एक बचपन की तालीम और तलबा पर तवज्जो का हुसूल 2030 तक जो है यकीनी बनाना है। इसका मतलब ये है कि 2030 तक हमें जो है ईसीसी, जिसे इब्तिदाई बचपन का जो इब्तिदाई बचपन की जो तालीम होती है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। अब प्राइमरी स्कूलें जो है वो पहली दूसरी से नहीं बल्कि वो 3 साल की उम्र से, जिसको हम बालवाड़ी, आंगनवाड़ी ये कहते थे, वहां से शुरू होगी और वहां से हमें मेहनत करनी होगी। इसीलिए पॉलिसी के जरिए ये बात चाही जा रही है कि 2030 तक इस बात को हमें मजबूती के साथ यकीनी तौर पर जो है इसको कामयाब करना है। और साथ ही जमात अव्वल में दाखिल होने वाले जितने तलबा है वो जमात अव्वल में आने से पहले यानी 6 साल या 5-5.5 साल जो भी उम्र हमारी तय है, वहां आने से पहले वो बच्चा पूरे तरीके से तालीम हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। जो मेहनत हमें जमात अव्वल में आने के बाद बच्चों पर करनी होती थी वो मेहनत हमें कम करनी पड़े और हम बच्चों को 3 साल की उम्र से ही तैयार करें। उसके बाद इब्तिदाई बचपन की तालीम की तवज्जो यानी ईसीसी, जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसको पूरे मुल्क में मरहलेवार जो है नाफिज किया जाएगा। साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं जमात तक के तमाम ज़ेरे तालीम मुल्क के तमाम तलबा को मियारी व मुकम्मल तालीम बशमूल ओकेशनल तालीम देने की कौमी सतह पर कोशिश की जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इससे पहले भी ये तालीम थी। हाँ, हम जानते हैं कि इससे पहले भी ये तालीम थी, वोकेशनल गाइडेंस हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करता था। फिर इसमें ऐसा क्या हुआ? अजीज साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने दुनिया के कई ममालिक जिनकी एजुकेशन पॉलिसीज का जब जो है जायजा लिया, उनकी कौमी तालीमी पॉलिसीज को पढ़ा तो उसमें ये बात पता चली। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर हम फिनलैंड को ले लेते हैं। फिनलैंड के तालीमी निजाम के बारे में अगर हम ये ले लें तो फिनलैंड का तालीमी निजाम ये कहता है कि वहां पर 6 महीने जो है वो रेगुलर स्कूल होती है और 6 महीने वहां पर प्रैक्टिकल होता है। वहां के जुग्राफियाई हालात, वहां के आबादी का ये सारा मामला अलग है। मैं वहां की और हमारे यहाँ की बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जो है मवाजना नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर जब दुनिया के ममालिक का स्टडीज किया जाता है, जब रिसर्च किया जाता है, तो हम इन तमाम जो है जिमरों को गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं एक अच्छे मुल्क की तामीर करना, हम चाहते हैं एक अच्छे अफराद को तैयार करना, हम चाहते हैं एक अच्छे मुआशरे की जो है यहाँ पर एक अच्छा मुआशरा तैयार हो, हमारे पास एक अच्छे शहरी तैयार हो जो मुल्क की, अपने मुआशरे की, अपने लोगों की फिक्र करे, अपने मुआशरे की तरक्की करे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इन बातों को यहाँ पर शामिल किया गया है। स्कूली निजाम को चलाने और कंट्रोल करने वाले इदारों की तजदीद करके गुज़िश्ता दहाई में हासिल तजुर्बात की रोशनी में बेहतर बनाए। जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे पास आए हैं, यानी हुकूमत के पास आए हैं, उसकी मदद से किस तरह से मजीद बेहतर जो है स्कूली निजाम को बनाया जा सकता है, उस काम को किया जाएगा। उसी तरह से इस तजदीद का मकसद तमाम तलबा को, खास तौर से समाज के बिछड़े हुए और पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले तलबा को बैनुल अक़वामी मियार की मुफ्त और लाजमी तालीम
प्री प्राइमरी से 12वीं तक दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैनुल अक़वामी मियार की यानी क्या? आपने एक नाम, एक कंसेप्ट सुना होगा जो हमारे महाराष्ट्र में भी जारी है। इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन देने की फिक्र पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ पर हो रही है। इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड कर दें, हम बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें, नहीं। इंटरनेशनल क्वालिटी का एजुकेशन देने से मुराद यह है कि दीगर ऐसे तरक्की याफ्ता मुमालिक जहां पर जो है बेहतरीन तालीम के जरिए से वहां के अच्छे शहरियों को तैयार किया जाता है, उसी तर्ज से हमारे यहाँ का जो तालीमी निजाम है उसको हम किस तरह से बैनुल अक़वामी मियार की मुफ्त और लाजमी तालीम देने की जो है ये बात इस कौमी तालीमी पॉलिसी में कही गई। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इब्तिदाई बचपन की तालीम वो तवज्जो किस तरह से जो है इस कौमी तालीमी पॉलिसी में इसको कौन सी बुनियादें यहाँ रखी गई। तो उसमें एक बात बड़ी अच्छे तरीके से ये कही गई है कि 2030 तक इब्तिदाई जो बचपन की तालीम है उस पर गवर्नमेंट पूरे तरीके से कोशिश करेगी कि उसमें वो सक्सेस हो जाए और पूरे तरीके से जो है लोगों तक उस बात को पहुंचाए, और उसके साथ साथ ही उनकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी ज़हनी, समाजी, जज्बाती, अखलाकी, तहजीबी, फनी और उसके साथ साथ जबानदानी व गुफ्तगू की जो सलाहियत है उसको परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी भी जो है इस कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर जो है बड़े ही अच्छे तरीके से बयान की गई है। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हर एक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बड़े पैमाने पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात की जा सकती है, दिन और रातें कम पड़ेगी, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर है। जब से मुझे ये पॉइंट मिला है तकरीबन 3 मरतबा मैं इस टॉपिक को पढ़ चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि और कितनी बातें इसके अंदर हो सकती है, जबकि हम पर्टिकुलर रोजाना इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हम पूरे तरीके से इसके अंदर अपने आप को लगा चुके हैं कि किस तरीके से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट के अंदर जो है नाफिज करने वाले हैं। एनसीईआरटी बचपन की तालीम को जो है पूरा एक सिलेबस, पूरा निसाबी खाका तैयार करके देगा, फिर उसके बाद एससीईआरटी की जानिब वो भेजा जाएगा, ये पूरी चेंज होंगी। उस तरह से जो है ईसीसी का पूरा सिलेबस हमारी रियासत में भी इससे पहले आकार जैसे कंसेप्ट तैयार हुए, लेकिन वो जो है बाल शिक्षण की विभाग की तरफ से और महिला व बाल कल्याण विभाग की तरफ से जो है वो किताबें छपी, आंगनवाड़ी की जो हमारे बहनें जो पढ़ाती थी उनको वो किताबें प्रोवाइड की गई, वगैरह वगैरह ये काम हुए। लेकिन अब बाकायदा जो है गवर्नमेंट के अंडर में जो है ये सारी चीजें चलेगी जो स्कूली तालीम का एक हिस्सा होंगी। उसी के साथ साथ सदियों से जो जारी हमारा जो रिवायती तरीके का जो हमारा जो पढ़ना पढ़ाना है, सीखना सिखाना है, उससे हटकर फनून, कहानियां, शायरी, खेल, गीत और नगमों के जरिए से जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है उन तमाम चीजों को उस निसाब के अंदर शामिल किए जाने की बात इसमें कही गई है। उसके साथ साथ एक मखसूस, वसी और मजबूत इदारों के जरिए से पूरी कुव्वत के साथ इसे नाफिज करने की बात भी कही गई है। उसमें ये बताया गया है कि ये क्या कहाँ होगा। तो उसमें आंगनवाड़ियां ये जो है स्कूली एजुकेशन का एक हिस्सा होगा, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल से मुंसलिक आंगनवाड़ियों को जोड़ दिया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल है जहां 5 से 6 साल की उम्र के तलबा जेर तालीम है, और जो प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी स्कूलों से मुंसलिक है। तो अब आगे कैसा होगा, देखिए बहुत सारे लोगों के जहनों में एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे बहुत तेजी से जो है घूमते हैं। फिर ऐसा होगा तो फिर वैसा कैसे होगा, फिर वैसा होगा तो टीचर चले जाएंगे क्या, फिर टीचर बढ़ जाएंगे क्या, फिर इस तरह से होगा। एक पूरी पर्टिकुलर चेन है जिसके अंदर तमाम बातों को मद्देनजर रखकर हर एक बात आपके सामने पेश होगी। उसके लिए सब्र और तहम्मुल से हमें उन तमाम चीजों को पढ़ना होगा, देखना होगा कि किस तरह से जो है ये चीजें नाफिज होती है, कितने फायदे उसके होंगे। इन बातों पर हमको जो है ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। उसके बाद प्री प्राइमरी स्कूलों को इसमें किस तरह से शामिल होगा, तो ईसीसी के लिए तरबियती याफ्ता अफराद तैयार किए जाएंगे, के इब्तिदाई तालीम देने वाले, यानी अब ये जो 2 स्कूलें बना दी गई, जो आंगनवाड़ी और बालवाड़ियों को जब इसमें शामिल कर दिया गया, तो वहां जो पढ़ाने वाली जो सेविकाएं हैं, जो अफराद है, उनको पहले ऐसा हुआ करता था कि 12वीं पास वाले जो लोग होते थे या 10th पास वाले जो लोग हुआ करते थे वो जो है बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। लेकिन इस मर्तबा कौमी तालीमी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इस बात को बताया गया है कि अब ईसीसीई में यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में
जो अफराद तालीम देंगे उन बच्चों को वो ट्रेंड होंगे, और उनके ट्रेंड की भी बात आगे जो है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्हें तरबियत देने की जिम्मेदारी जो है इस तालीमी पॉलिसी में बताया गया है। साथ ही उसके बाद जो है आंगनवाड़ी के मराकज़ को मजबूत करने की बात इस कौमी तालीमी पॉलिसी में कही गई है। एक नया कंसेप्ट इसके अंदर यह भी बताया गया है कि 5 साल की उम्र से पहले, यानी अव्वल जमात में आने से पहले पहले बच्चे को तैयार करने के लिए बाल वाटिका जैसा कंसेप्ट जो है उसके जरिए से, बाल वाटिका, ये अगर आप देखेंगे उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे खासतौर से इंग्लिश वाला, तो उसके अंदर पैरा नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि बाल वाटिका के जरिए से जमात अव्वल में आने से पहले पहले बच्चे को बेहतरीन तरीके से तैयार करना, और बच्चा पहली क्लास में दाखिल होने से पहले तरबियत याफ्ता असातिज़ा के जरिए से तैयार किए जाएंगे, तभी वो जो है पहली जमात में आएगा। उसके बाद मौजूदा जो हमारी आंगनवाड़ियां हैं उसमें जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो अपनी खिदमत को कई दिनों से अंजाम दे रहे हैं, ऐसे असातिज़ा जो 12वीं पास हो उन्हें ईसीसी में, यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, और जो लोग 12वीं से कम तालीम याफ्ता असातिज़ा है उनको 1 साल डिप्लोमा ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाएगा। मुझे लगता है ये सारी चीजों की मालूमात हासिल करना हमें जरूरी है। होता ये है कि हम तालीमी पॉलिसी को नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे मुगालते में होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये मुमकिन है क्या, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। इफ वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पॉजिटिव वे देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर चीज दुनिया में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अपना एक नजरिया होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम हर चीज को निगेटिव तरीके से देखेंगे तो फिर दुनिया की पॉजिटिव चीज भी आपको निगेटिव दिखने लगेगी, लेकिन अगर आप निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। ऐसा मेरा अपना जाती तजुर्बा भी। ये कोर्सेज फासिलाती तरह के लोगों के जहनों में ये ख्याल आएंगे कि बालवाड़ी के टीचर को अगर 1 साल का डिप्लोमा देंगे और 6 महीने के कोर्सेज देंगे फिर तो ये कोर्स कैसे होंगे? ये डिस्टेंस मोड के होंगे। जैसे हम लोग बीएड और एमएड करते हैं, जो लोग टीचर्स होते हैं ये, और उनको जो है अब स्कूल में भी जाना है तो वो फिर कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस मोड, इस बात को भी जो है इस बात का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ कौन कौन से, अब इसका निसाब कौन लोग तैयार करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा, कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट के इश्तराक से होगा? तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले एमएचआरडी हुआ करता था अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। उसके साथ साथ उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, जो वज़रात ख़वातीन और अत्फ़ाल है, वज़रात सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद है, और ट्राइबल जो हमारा डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके एक साथ इन ईसीसी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अब उसके बाद एक अहम चीज इसमें ये जो बताई गई है, जो स्कूली तालीम के लिए हमें समझने की जरूरत है। साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया है, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले वक्फे में जो रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई, उसके बाद हमारे पास नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रिपोर्ट आए। उन रिपोर्ट्स को सामने रखकर अगर हम ये देखें तो हमें ये पता चलेगा कि आज भी खानदगी के लिए पढ़ने को लेकर कितना काम करने की जरूरत है, रियाजी की सलाहियतों के ऊपर कितना काम करने की जरूरत है, और दीगर ऐसी कई सलाहियतें हैं जिसको परवान चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी ही वक्त की अहम जरूरत है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि ये एक मिशन के तौर पर काम करेगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, वो एक मिशन के तौर पर इसको आगाज करेगा, और तमाम रियासतों में और तमाम जो हमारे यूटीज है वहां पर 2025 तक तीसरी जमात तक के तमाम प्राइमरी स्कूलों में ये मंसूबा नाफिज करने का जो है उनका कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड है। उसके अंदर क्या क्या होगा? तो असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। क्यों तरबियत दी जाएगी? ताकि पढ़ने की बुनियादी सलाहियत और रियाजी की बुनियादी सलाहियतों का उबूर हो, ये सलाहियतों का परवान चढ़े। इन सलाहियतों के बगैर बच्चों की इन सलाहियतों के बगैर बच्चों की जो तालीम है, जो बुनियादी जो चीज है, वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक बच्चे आगे तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा
ये तीसरी तक के बच्चों को पढ़ने की सलाहियत और रियाजी की बुनियादी सलाहियत, जिसमें लिटरेसी कहा गया है और न्यूमेरेसी कहा गया है, अप टू थर्ड स्टैंडर्ड यानी तीसरी जमात तक इन चीजों को, इन सलाहियतों को 2025 तक परवान चढ़ाने की बात कही गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत महाराष्ट्र उसमें बड़े मेहनत के साथ हमारे असातिज़ा जो है इस काम को कर रहे हैं। पूरी रियासत ने पढ़ने की बुनियादी सलाहियत के प्रोग्राम को बड़े अच्छे से लिया है। हर स्कूलों में इक्तिसाबी बालिदगी के वसाइल तालीम का संदूक है, जिसमें रियाजी और उर्दू के जो है एपरेटस जो है तालीमी लवाजमात दिए गए हैं। बच्चे खुशी खुशी खेल खेल के जरिए से और स्कूल में आने से पहले की सरगर्मियां, बच्चों को तैयार करने के लिए सरगर्मियां, सुनना और गुफ्तगू को तैयार करने के लिए सरगर्मियां और मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर ख्वानी और तस्वीर बयानी को लेकर जो ये सरगर्मियां हैं, उसके जरिए से हमने पढ़ने की बुनियादी सलाहियतें और रियाजी की बुनियादी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए काम पिछले 3 सालों से किया ही है। इन सारी चीजों का हमें इन कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर जरूर जो है इसका फायदा पहुंचेगा। उसके बाद एनसीईआरटीज और एससीईआरटी जो है ये जो है तमाम तलबा को स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए उबूरी साहमाई प्ले बेस्ट मॉडल तैयार करेगी। उसके बाद बुनियादी खानगी और नंबर शुमारी, जैसे मैंने लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो कहा, तो दीक्षा का भी इस कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर जिक्र किया गया है कि ये सारा जो मवाद है वो अब जो है दीक्षा इस नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। आज दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जबानों के, सभी मीडियम्स के, सभी मैनेजमेंट के, चाहे वो किसी भी खित्ते का हो, अगर आप दीक्षा को देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जिस जिस भी बोर्ड के स्कूलें हैं, चाहे वो आईसीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश बोर्ड हो, चाहे वो कर्नाटका बोर्ड हो, केरला बोर्ड हो, जितने बोर्ड्स हैं वहां की जो किताबें हैं, बेंगलुरु हो, कर्नाटक, ये सारे बोर्ड्स की किताबें वहां पर तैयार हुआ ई कंटेंट वहां पर लगाया गया है। मुझे 20 मिनट दिए गए थे, मैं माजरत चाहता हूं तमाम जिम्मेदारान से, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि बिल्कुल बस इसके बाद की एक आखिरी स्लाइड है। मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि शाबान साहब को हमें सुनना है जो हायर सेकेंडरी पर कहने जाएंगे। इसके जो हमारी स्कूली तालीम के अंदर ये जो बातें हैं ये बहुत अहम है। उसके साथ साथ तलबा की सेहत के बहुत बड़े अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर ख्याल रखा गया है। उसमें सेहत बख्श खाना, जिसमें मिड डे मील जो हम बात कर रहे हैं, तो मिड डे मील पहले भी आया करता था, क्या नया है, तो उसके अंदर किस तरह से अच्छी और ज्यादा सुधार लाया जा सकता है, किस तरह से उसका जो है निगरानी की जा सकती है, वो निगरानी कार्ड कैसे तैयार किया जा सकता है, ये सारी बातें इस कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर दी गई है। न सिर्फ इन चीजों के, दोनों चीजों को ध्यान में रखा गया है। एक तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रखा गया है और एकेडमिक को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं होती, तब तक हमारा एकेडमिक भी जो है, ये दोनों चीजें एक दूसरे की लाजिम और मुल्जिम हिस्से होते हैं। हमें अगर हमारा एकेडमिक बहुत अच्छा है लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है हमारे बच्चों पर देखने, बच्चे मायूस होते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट होने का डर लगता है, बच्चों का स्कूल में दिल नहीं लगता। इसलिए हमारे स्कूल का जो माहौल है वो भी सेहत बख्श हो, उसको मसरत फराहम करने वाला हो, इस बात की फिक्र भी इसके अंदर भी की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी पिछले कई दिनों से ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ तलबा को सीखने की सतह को मालूम करना, उसके लिए बैनुल अक़वामी मियार को मद्देनजर रखना जरूरी है। इवैल्यूएशन सिस्टम, अब ये इसके अंदर बहुत अहम बात ये बता दी गई है कि तलबा को सीखने की सतह यानी उसका जो लेवल है, जिसको हमने अध्ययन स्तर निश्चिती कहा था, पिछले दिनों में महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र ने इस चीज को किया कि बच्चे का लेवल क्या है, लेवल बेस्ड लर्निंग, ये पता करना जरूरी है। जब तक डॉक्टर्स को ये पता नहीं चलेगा कि उसे बीमारी कौन सी है, बच्चे को बीमारी कौन सी है, तब तक वो ये जान ही नहीं सकते कि उन्हें ट्रीट कैसे करना है। लिहाजा कौमी तालीमी पॉलिसी में इस बात को भी बताया गया है कि हमें तलबा के सीखने की सतह को, कि वो अब कौन से सतह पर है, मिसाल के तौर पर बच्चा भी अल्फाज पढ़ रहा है, जुमलों की सतह पर है, अच्छे तरीके से कहानियां पढ़ रहा है, रमूज औकाफ को समझ रहा है और उतार चढ़ाव को समझ रहा है, साउंड समझ रहा है, इंटोनेशन समझ रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है। इसीलिए कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि हम बच्चों के सीखने की सतह को मालूम करें। साथ ही साथ काउंसलर्स और तरबियत याफ्ता सोशल वर्कर्स को स्कूल से जोड़े जाने की बात इसके अंदर कही गई है। एक बेहतरीन जो बात यहाँ है कि जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो हमारे बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, उनको, और जो तरबियत याफ्ता सोशल वर्कर है, कि समाज की जो अहमियत है
اور हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, इसलिए इन लोगों को जो है स्कूल से जोड़ने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। एक कमेंट्स बीच दरमियान में किसी साथी ने हमारे किया कि जबान को सुधारने की, जबान को परवान चढ़ाने की काम होना जरूरी है, यकीनन जरूरी है, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये भी है कि जबान परवान जभी पर चढ़ेगी जब उसको जबान पढ़ना आएगी। अभी मामला ये है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये कह रहा है कि 70% ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी उर्दू पढ़ना नहीं आता। मसला तो ये है कि अभी हमारे बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता, जब तक पढ़ना ही नहीं आएगा अच्छी जबान कहां से आएगी। लिहाजा गुजारिश ये है कि हम बच्चों को पहले पढ़ना सिखा देवे, जब पढ़ना आ जाएगा फिर एक मियारी जबान उसे खुद ब खुद आ जाएगी। हम आज से पहले क्या थे, हम में से हर एक जानता है, हम जब स्कूल में थे, जब हमारी मुकामी जबान का कितना असर हमारी अपनी जबान पर हुआ करता था, हम किस अंदाज में गुफ्तगू किया करते थे, हम किस अंदाज में लोगों से बातचीत किया करते थे, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन उसके बाद एक हम तालीमी निजाम में आए, लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, लोगों के साथ गुफ्तशनीद हुई, अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ जुड़ना हुआ, अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। लिहाजा आज हमारी जबान कुछ हद तक, क्योंकि हम सब लोग तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े माहिरीन हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को, मैं अपने आप को एक तालिब इल्म के हैसियत से अपनी जिंदगी में पाता हूँ। मैं हर वक्त आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुअल्लिम हमेशा जब तक एक तालिब इल्म बनकर जिंदगी नहीं गुजारेगा तब तक वो एक अच्छा मुअल्लिम नहीं बन सकता। हम हर तरह से सीखने वाले बने। लिहाजा कौमी तालीमी पॉलिसी को अंदर जो है इस बात का भी दायरे को वसी किया गया है कि रस्मी और गैर रस्मी तालीम के मुख्तलिफ रास्ते खुल सके, अलग अलग तरीके से जो है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही जो है। अब बच्चे का जो सेंस है, बच्चा जिस तरीके से ये चाहता है, बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और SIO स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हमारे यहाँ पर भी MSBOS का जो है स्टार्टअप हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र ओपन स्कूलिंग बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 5वीं, 8वीं और 10वीं जो बच्चे हमारे NIOS से जो है एग्जाम दिया करते थे, खासतौर से मदारिस के हमारे जो बच्चे हैं जो NIOS से एग्जाम दिया करते थे, अब हमारे स्टेट का अपनी दरसी किताबें हैं, हमारा अपना निसाब है, जिसमें 5वीं और 8वीं 10वीं की अल्हम्दुलिल्लाह किताबें बिल्कुल तैयार है। अगले कुछ दिनों में जो है इंशाल्लाह वो दस्तयाब होगी, और किस तरह का उसका प्रोसेस होगा वो आप लोगों ने GR के जरिए से पढ़ाई है। आगे ये बात बहुत जरूरी है। ये आप सुन रहे होंगे कि ये सब क्यों जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था कि हम अपने इदारों के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके और एक मियारी तालीम दे सके। अगर हम इन चीजों को करेंगे, ये कौमी तालीमी पॉलिसी में इन चीजों को शामिल करने का मकसद यही है कि हम ड्रॉप आउट की शरह को कम कर सके और एक मियारी तालीम दे सके। ड्रॉप आउट होता क्यों है, आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे स्कूल में टिक नहीं पाते, जो आते हैं वो पूरा पढ़ नहीं पाते, दरमियान से स्कूलें छोड़ देते हैं। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर इसके अंदर रखा गया है। ओपन स्कूलिंग का कंसेप्ट इसके अंदर डाला गया है। स्कूली तालीम का जो नया पैटर्न है 5+3, 3+4, इसके अंदर उम्र के लिहाज से तरतीब दी गई है। 3 से 8 है, उसके बाद 8 से जो है 11 है, उसके बाद 11 से 14 है और 14 से 18 साल है। तो ये सारे बच्चों को जो है मद्देन उम्र का लिहाज रखते हुए उनको कैटेगराइज किया गया है, और उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो स्कूलों का है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। भाई आप बहुत अलग बिल्डिंग बना दी जाएगी और ये किया जाएगा, नहीं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो अभी जैसी स्कूलें हैं उसी तरह की रखने की बात इस कौमी तालीमी पॉलिसी में की गई है। उसके बाद अलग अलग जो है ये पैटर्न किस तरह से नाफिज होगा उस पर जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि 3 साल से जो 8 साल वाले बच्चे हैं उनको कैसे तैयार किया जाएगा, 8 से 11 वाले जो बच्चे हैं उनको क्या सिखाया जाएगा, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर जो है ये बताने की फिक्र की गई है कि दरमियानी जो मरहला होगा उसमें कौन कौन से मज़ामीन को जो है ये किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये सारी PPTs मैं पूरे रियासत के साथ शेयर करूंगा। जो की फैक्टर्स है जो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। ये सिर्फ एक जिम्रे को लेकर अभी हमारा स्कूल एजुकेशन को लेकर काम चल रहा है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स जो अलग अलग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको मजीद हम पूरे स्टेट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बहुत गहराई के साथ इस नतीजे पर स्कूल एजुकेशन को पहुंचाने की कोशिश की गई है कि एक लचकदार जो हमारा जो तालीमी सिस्टम है उसके जरिए से हम एक अच्छा शहरी और एक मियारी तालीम के साथ एक अच्छे शहरी को तैयार करें और हमारे मुल्क में एक अच्छे बाशिंदे के तौर पर हमारे जो तलबा है जो हमारे पास पढ़ रहे हैं
وہ اچھے شہری جو ہے بن کر ملک کے سامنے پیش ہو. اور نصاب اور نظام تعلیم کا مقصد طلبہ کو حقیقی سیکھنے والا بنانا اور طلبہ کو سیکھنے کے طریقے سکھانا ہے تاکہ رٹ کر سیکھنے کا ماحول ختم ہو. تعلیم کا مقصد صرف ذہنی نشوونما نہ ہو بلکہ طلبہ کی اخلاقی اور ہمگیر ترقی کا ہونا ہے. یہ اوور آل اسکولی تعلیم کو لے کر یہ باتیں بہت زیادہ اہم تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی تعلیم کی بات یہاں پر کہی گئی ہے، اوور آل ان سارے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات دیکھی جائے تو ہم سب بخوبی واقف ہے کہ آج ہمارے تعلیم میں اخلاقی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. دیگر الگ میڈیمز کی اور دیگر الگ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آج ہمیں کس طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت جو ہے کافی زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں نے لیا. جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا اتنے وقت سے زیادہ لیا، لیکن وہ میری مجبوری تھی، اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. اور ساتھیوں میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قومی تعلیمی پالیسی آپ لوگ ضرور پڑھیں، ہر ٹاپک کو لے کر پڑھیں، اپنا ایک الگ پریزنٹیشن تیار کریں، چھوٹے چھوٹے نکات نکالیں، مائنوٹ آبزرویشن کریں، اس کے سائلنٹ فیچرز کو نکالیں اور جو ہے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں ایک لمبی اننگ کھیلنی ہے، ایک بڑے آگے تک ہم کو بچوں کو پڑھنا پڑھانا ہے. لہٰذا اسی قومی تعلیمی پالیسی کو مد نظر رکھ کر ہم کو کام کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ٹیچر پیش ہو، ایک اچھے معلم بن کر پیش ہو، تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اس قومی تعلیمی پالیسی کا بغور مطالعہ اور جو ہے اس کا معاونہ کریں. آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، بولنے کا موقع دیا، اور اسٹیٹ کے تمام اساتذہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری اس بات کو سن رہے ہیں. میں ان کو میری اپنی اندرونی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کے چہرے اور ان کے چہروں کو دیکھ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ واقعی میں اس کی ضرورت تھی. اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آئیٹا نے جو ہے یہ پلیٹ فارم پورے ریاست کے اساتذہ کے لیے پرووائڈ کیا. اس کے لیے میں آئیٹا کا شکر گزار ہوں اور اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں کہ چلنے والے ہی تو پا لیتے ہیں منزل اپنی، چلنے والے ہی تو پا لیتے ہیں منزل اپنی، راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. الحمدللہ ہم تمام لوگ چلنے والے ہیں، رکنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں منزل ضرور ملے گی. میں خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہم تمام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.